اگر ہمارا پانی روکا یا اس کا رخ موڑا گیا تو اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ 7 جار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس، کہا سنتاس معاہدے کو کوئی بھی ایک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ 3 دریاؤں پر ہمارا حق ہے۔ بھارت کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب بھی بھارت سے مذاکرات ہوئے تو جامع ہوں گے۔ مسئلہ جموں کشمیر کے حل کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ فیلڈ مارشل آسنوی کی قیادت میں پاک فوج امن کے لیے کوشاں ہے۔ بانی پیٹھے کے خلاف کیس عدالتی معاملہ ہے۔ امریکہ کے ساتھ آئندہ 2 سے 3 روز میں ٹیرف پر معاہدہ طے پا جائے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے سے متعلق اہم پیش رفت۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب مذاکرات کے فائنل راؤنڈ کے لیے واشنگٹن روانہ۔ محمد اورنگزیب کے دورہ امریکہ کے دوران پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ پر حتمی بات چیت ہوگی۔ تجارتی معاہدے سے دونوں ممالک کی معیشتوں کو فائدہ ہوگا۔ وزارت خزانہ کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاک اور امریکہ میں مضبوطی تجارتی تعلقات اہم ستون ہیں۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان 2 طرفہ تجارت کو روایتی اور غیر روایتی شعبوں تک بڑھانا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ کا دورہ تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کی کڑی ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ پاکستان کا غزہ میں مستقل جنگ بندی، خوراک کی فراہمی اور UN کی مستقل رکنیت دینے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم 7 جار کا فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب، کہا آج کا غزہ انسانی حقوق کے قوانین کا قبرستان بن چکا ہے۔ غزہ میں جنگی جرائم پر قرار واقعی سزا یقینی بنائی جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ کی صورتحال تباہ کن قرار دے دی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے 2 ریاستی حل پر 3 روزہ عالمی کانفرنس سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری کا خطاب، کہا مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا۔ موجودہ تنازع خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ غزہ کی تباہی ناقابل برداشت ہے اور غزہ کے خاتمے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ کا مسئلہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ کانفرنس کا بروقت اقدام ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر کام کر سکتا ہے اور یہ قبضے کے خاتمے کی طرف ناقابل واپسی پیش رفت کو متحرک کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کا فلسطینی ریاست بننے تک اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے اور اسے تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیل فلسطین بحران میں 2 ریاستی حل کو عملی جامہ پہنانا ہی علاقائی استحکام کی کنجی ہے اور کانفرنس اس سمت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خطے کے تمام لوگوں کے لیے سیکیورٹی استحکام اور خوشحالی فلسطینیوں کو انصاف فراہم کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ امریکہ اسرائیل کا فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کا بائیکاٹ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ کانفرنس غلط وقت پر بلائی گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کانفرنس حماس کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی۔ امریکی سفارتکاری کے ذریعے غزہ میں جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ٹیمی بروس کا مزید کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں مسئلے کے حل کے لیے شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، بھوکے بے گھر لاغر اور نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری۔ 43 فلسطینی مسلمان صہیونی فورسز کی دہشت گردی کے باعث شہید، درجنوں زخمی۔ غذائی قلت سے شہید افراد کی تعداد 147 ہو گئی۔ جارحیت دہرائی تو ایسا جواب دیں گے جسے چھپانا بھی ممکن نہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ایران کو بخوبی معلوم ہے حالیہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے دوران ہمیں اور ہمارے مخالفین کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ امریکی اور صہیونی جارحیت میں دشمن کے نقصانات کا بڑا حصہ آج بھی چھپایا جا رہا ہے، تاہم ایران کو ان نقصانات کا بھی علم ہے۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ اگر دنیا کو ایرانی جوہری پروگرام پر تحفظات ہیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تمام شوگر ملز مالکان اور چینی برآمد کرنے والوں کا مکمل ریکارڈ فوری طور پر طلب کر لیا۔ کمیٹی کا ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ پر شدید تشویش کا اظہار۔
कराची में चीनी की कीमत 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कमेटी में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को गलत एदाद-ओ-शुमार पेश करने पर सख्त सरजनिश का सामना करना पड़ा। आवाम के लिए अच्छी खबर, कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली ₹1.75 फी यूनिट सस्ती हो सकती है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान ताउन में पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन की क़यादत में किर्गिस्तान के एक आला सतही वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द का खैर मकदम किया और IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में टैरिफ समेत इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार की कुवैती हम मनसब से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, दिफ़ा के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसहाक़ डार को कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इआदा किया। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ, अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे। बानी रिहा होंगे। हम मुकदमात से घबराने वाले नहीं। मेरे ऊपर झूठे और मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए हैं। हम हमेशा से अपने आप को कानून के सामने पेश करते रहे। 5 अगस्त हुकूमत के लिए एक बड़ा सरप्राइज का दिन है। मुशीर इत्तलात KP डॉक्टर बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 5 अगस्त की तैयारियों को देखकर हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। अगर हुकूमत 26 नवंबर जैसे हथकंडे दोबारा आजमाए तो इस बार भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का जमहूरी, आईनी और कानूनी हक है, जिसे कोई ताकत नहीं छीन सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की हिकमत अमली तय करने के लिए अहम मुशावरती इजलास 31 जुलाई को पेशावर में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पार्टी की क़यादत गौर करेगी कि मार्च इस्लामाबाद की जानिब किया जाए या सूबाई सतह पर रिकॉर्ड कराया जाए। पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाना हमारी तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहते हैं, मसाइल को जड़ से समझने की कोशिश करना पड़ेगी। एहतियात इलाज से बेहतर है। कोशिश है कि छोटे अमराज का इलाज मुकामी सतह पर हो। इंसदादे ग़िज़ा का कौमी प्रोग्राम अहमियत का हामिल है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी वक्त का तकाज़ा है। आने वाली नस्ल को टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहते हैं, हमारे पास क्वालिफाइड लाइसेंस टीचर्स हैं। लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर हैं। क्या हमने अपने बच्चों को इस मकाम के लिए तैयार किया है? सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में असातिज़ा का अहम किरदार होता है। घर में बेस नहीं बनेगी तो तालीमी इदारे भी कुछ नहीं कर सकते। फितनल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब नाम लिहाज लापता अफराद की आड़ में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सोहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम निगाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। इस कबल फितनल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतअद्दिद दहशतगर्द नाम निगाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल थे। मार्च 2024 को गवादर हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल। नेवल बेस हमले पर मारे जाने वाला दहशतगर्द अब्दुल वदूद भी लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। महरंग लागू में हमेशा नाम निगाद लापता अफराद का बयानिया अपने मज़मूम अज़ाइम और रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों का कोई सबूत मौजूद नहीं।
महज दावों से काम नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार की नाकामी और खामोशी पर कांग्रेस रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन नाकामी ने मोदी सरकार की नाअहली और झूठे दावों को बेनकाब कर दिया। न वजाहत न जवाबदेही। ऑपरेशन सिंदूर ने मोदी सरकार की खोखली क़यादत की किली खोल दी। कांग्रेस रहनुमा साबिक मरकजी वजीर दाखिला ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मोदी सरकार की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। साबिक मरकजी वजीर दाखिला ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की खामोशी और शफाफियत पर भी एतराज़ किया। कहा, वजीर आज़म मोदी 3 माह बाद भी ऑपरेशन सिंदूर पर खामोश हैं। अवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। पहलगाम हमले के असल दहशतगर्द न गिरफ्तार हुए, ना ही उनकी शनाख्त हुई। हुकूमत क्यों खामोश है? हुकूमत ने सिर्फ पनाह देने वालों की गिरफ्तारी की खबर दी। हमलावर अब भी लापता हैं। साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। शरी रहमान का कांग्रेसी रहनुमा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, चिदम्बरम का बयान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को झूठा साबित करता है। हमलावर भारतीय शहरी थे, इसलिए मोदी सरकार उनकी शनाख्त छुपा रही है। पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका। भारतीय हुकूमत सच सामने आने के खौफ से शफाफ तहकीकात से भाग रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 275 पॉइंट्स का इजाफा। 1,39,655 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 151 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 271 कंपनियों के हिस्से में कमी और 17 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। माली साल 2025 के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में मजमूई तौर पर 4.7% इजाफा रिकॉर्ड। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिहाज से चीन, हांगकॉन्ग, जनूबी कोरिया, जापान, तुर्किया नुमाया रहे। गैर मुल्की सरमायाकारों में चीन 90.3% इजाफे के साथ सरफहरिस्त। माली साल 2025 में चीन ने $1224.3 मिलियन की सरमायाकारी के साथ नया संग मील अबूर किया। हांगकॉन्ग ने तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी के शुबे में $496.9 मिलियन की खती सरमायाकारी की है। मोदी का बढ़ता हुआ जंगी जुनून भारत को एक इंतहा पसंद फौजी रियासत में बदल रहा है। जनूबी एशिया में अस्करी दबाव बढ़ाने के लिए मोदी सरकार हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे मोहलिक हथियारों पर अंधाधुंध सरमाया लगा रही है। तालीम, सेहत और रोजगार जैसे बुनियादी मसाइल से मुंह मोड़कर मोदी सरकार अपनी नाकामियों को असलहे के ढेर में छुपाने की कोशिश में मसरूफ। भारतीय दिफाई तहकीकाती इदारे ने ब्रह्मोस 2 मंसूबे की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल की मुश्तरका तैयारी के लिए सरगर्म। रूसी सदर पुतिन के दौरे भारत के दौरान ब्रह्मोस 2 की मंजूरी और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर फैसला मुतवक्किल। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव में तखरीबकार मोदी सरकार की चाल बेनकाब। नाअहल मोदी सरकार ने नाकाम ऑपरेशन सिंदूर पार्लियामेंट में शदीद तनकीद के बाद नया शोशा छोड़ दिया है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अपोजिशन की शदीद तनकीद का रुख मोड़ने पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की कहानी सुना दी गई। लोकसभा में मोदी की तकरीर को झूठी सपोर्ट फराहम करने के लिए ऑपरेशन महादेव का ड्रामा रचाया गया। ऑपरेशन महादेव में अब तक 3 दहशतगर्द हलाक हो चुके। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन महादेव में हलाक दहशतगर्दों में पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड भी शामिल है। लोकसभा में तनकीद के बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठने लगे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में जवाबदेही के बजाय ऑपोजिशन पर तनकीद करते रहे। भारतीय वज़ीर दिफा ने नाकाम ऑपरेशन सिंदूर में तैयार हो फौजी हलाकतों के सवालात को टाल दिया। पहलगाम हो या महादेव फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोदी के सियासी एजेंडे को सहारा देने की नाकाम कोशिश जारी। मोदी की लोकसभा में तकरीर से एक दिन कबल फेक इनकाउंटर, सियासी स्टेज तैयार करने की कोशिश बेनकाब। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा दिया। फॉल्स फ्लैग हमलावर ऑपरेशन हिंदुत्व सरकार की रियासती पॉलिसी बन चुके हैं।
ऑपरेशन सिंधु पर पार्लिमानी बहस से एक दिन कबल पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तेफाक नहीं है। भारत में हर फॉल्स फ्लैग के पीछे एक सियासी बहरान या इलेक्शन करीब होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। गोदी मीडिया ने बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दे दिया। माहिरीन ने इजहार तशवीश करते हुए कहा कि राइफल की बैरल में कपड़ा मौजूद, हकीकी मुकाबले में ऐसा गैर फाल हथियार कैसे हो सकता है। मॉनसून बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी का अलर्ट जारी कर दिया गया। दरियाए रावी, जहलम, सतलुज और जनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाए सिंध में बड़ा सैलाबी रेला डीजी खान की हदूद में दाखिल हो गया। जंग में दरियाए चनाब में तूफ़ानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलों और आबादियों में पानी दाखिल हो गया। राब्ता सड़कें डूब गईं। हाफिजाबाद में दरियाए चनाब के तरफ कटाव में इजाफा। तोसा शरीफ में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार रही। ज़र राज़ी दरिया बर्द हो गई। पाकिस्तान को वॉक ओवर दिया तो पाकिस्तान एशिया कप जीत जाएगा। भारत एशिया कप खेले या ना खेले दौराए पर फंस गया। भारतीय मीडिया एशिया कप खत्म कराने पर तुल दिया। साबिक क्रिकेटर्स और सियासतदानों का रोना धोना भी जारी। हुकूमत से एशिया कप के बायकॉट का मुतालबा। मोदी सरकार का मौक़िफ़ है पाकिस्तान को किसी सूरत वॉक ओवर नहीं दिया जाएगा। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। 2025-26 के सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। स्ट्रेंथ एंड कंडक्शन को कोचेस के साथ अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस का जायजा लेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस लाजमी करार। तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पहली या दूसरी कोशिश में पास करना जरूरी होगा। और ऑस्ट्रेलिया ने 5वें T20 मैच में वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त देकर क्लीन स्वीप कर दिया। वेस्ट इंडीज़ ने पहले खेलते हुए 170 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 17वें ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सीरीज के 5 मैचों में वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग की और तमाम मैचों में कैमरून्स ने हदफ को बासानी पूरा कर दिया।